Hello friends, today's verse is taken from Proverbs chapter 16 verse 3. हेलो मित्रों, आज का प्रतिज्ञा वचन नीति वचन 16 उसका 3 से लिया गया है। Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। Yes, whatever you do, commit it to the Lord and He will bless your plans. आप जो भी करते हैं वो काम परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, परमेश्वर आपकी सारी कल्पनाओं को सिद्ध करेंगे। So many times we are so busy with our lives, we want to do this, we want to do that, but we forget to give it to the Lord. कई बार अपने जीवन में हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं और सारी बात परमेश्वर के हाथ में सौंपना भूल जाते हैं। But from today, let's take the decision to commit each and everything in the Lord's hands. लेकिन आज से हम ऐसा निर्णय लें, हमारे जीवन के हर एक बात परमेश्वर के हाथ में हम सौंप दें। This is what happened to me also when I was doing my MBA course. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मैं अपना MBA कर रही थी। After almost 7 years, I had to study maths and statistics and finance again. लगभग 7 साल के बाद मुझे गणित, स्टैटिस्टिक्स और आर्थिक बातों का पढ़ाई करना पड़ा। I was so scared. I said, Lord, I don't know what I'm going to do. मैं बहुत डरी हुई थी। मैं कही परमेश्वर, मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगी। But every time before I used to study, I used to tell the Lord, Lord, give me the wisdom that is needed to study this subject and let me do it to glorify your name. मगर हर वक्त पढ़ाई करने के पहले मैं परमेश्वर से पूछती थी, परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दे ताकि मैं इस पढ़ाई को कर सकूं और आपको महिमान्वित कर सकूं। And each and everything the Lord himself taught me. और सारी बात परमेश्वर स्वयं मुझे सिखाए थे। The Lord sent wonderful people also to help me to study this course. परमेश्वर ने कुछ अच्छे लोगों को भेजा जो हमें इस कोर्स पढ़ने में मदद किए। And finally I succeeded. और अंत में मैं सफलता पा ली। In the same way, you also, whatever you do before you start studying or before you start cooking, before you start driving your car, tell the Lord, Lord, I need your presence with me. उसी तरीके से हर एक काम करने के पहले, खाना बनाने के पहले, गाड़ी चलाने के पहले, हर एक काम करने के पहले आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपकी आशीष की मुझे आवश्यकता है। And surely the Lord will bless each and everything you do. और निश्चित रूप से आपके हर एक काम में परमेश्वर आशीष बरसाएंगे। The Bible says in Psalms 27. बाइबल भजन संहिता 20:7 में कुछ ऐसा कहती है, Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of our Lord. किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। Yes, let's trust the Lord and let's pray together. आइए परमेश्वर पे भरोसा करके साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। Lord Jesus, we commit each and everything what we are going to do today into your hands, Father. प्रभु, आज के दिन हम जो काम करने वाले हैं, हर एक काम आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। Lord, I pray for all the children who are preparing for competitive exams, Father. प्रभु, मैं हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। Lord, so many people might be facing their public exams for the first time. कई व्यक्ति शायद अपना पब्लिक इम्तिहान पहली बार उसका सामना कर रहे हैं। Lord, I pray for your wisdom to come upon each and every one of them. पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बुद्धि उन सब के ऊपर उतारा आए। Remove the fear from their lives, Father. उनके जीवन से हर एक डर को आप दूर करें। Lord, we give each and every exam paper into your hands. पिता, इम्तिहान के हर एक विषय आपके हाथ में हम सौंपते हैं। Lord, help us to learn what is required. Help us to learn whatever is important, Father. पिता, हमें आशीष दे ताकि जो महत्वपूर्ण बात है उसको हम सीख लें, जिस बात को सीखने का आवश्यकता है उसको हम सीख लें। Lord, I also pray for people who are looking for jobs today. पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो आज नौकरी के तलाश में हैं। We commit each and everything into your hands. पिता, सारी बात आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। Let your grace be upon them, Father. पिता, आपका अनुग्रह उनके ऊपर बढ़ते हैं। Lord, I pray each and every prayer in your name. पिता, हर एक प्रार्थना आपके नाम से मांगती हूँ। Amen. आमीन। So, my dear friends, when you commit everything into the Lord's hands, the Lord will surely bless you. मेरे मित्रों, आप हर एक विषय जब परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, परमेश्वर आपको निश्चित तरीके से आशीष देंगे।